لال حویلی جس کی ظاہری خوبصورتی دیکھنے والوں کو مبہوت کرتی، تو وہیں اس حویلی کی در و دیوار کسی مظلوم کی سسکیوں اور بے زباں فریادوں کو سنتی یہاں کے مکینوں کی طرح بے حس ہو چکی تھیں۔ اس حویلی کے بے شمار کمروں میں سے ایک ماسٹر بیڈ روم، جس کی شان و شوکت اس کمرے کے مکی کے اعلیٰ ذوق کی نشاندہی کرتی تھی، وہ خود بھی بلا کا وجہی مرد تھا، لیکن وہ ظالم بھی بلا کا تھا۔ بدلہ لیتے وقت وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے والا انسان کمزور ہے تو اسے معاف کر دے، بلکہ وہ اپنے دشمن کی سانسیں اس پر تنگ کرتے گویا اس کی حالت موت سے بھی بدتر کر دیتا تھا۔ جیسے اس وقت وہ اپنے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی اپنی بیوی کو بے حسی سے دیکھے جا رہا تھا، جو اس سے معافی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ اس گناہ کی معافی کی طلبگار تھی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، لیکن سامنے کھڑے شاندار مرد کو اس کے سچ پر ذرہ برابر بھی یقین نہیں تھا۔ تم مجھے معاف کر دو گے اور طلاق دے دو گے نا؟ وہ گویا اس کے پیروں میں گری ہوئی تھی، اس کے علاوہ وہ فی الحال کچھ اور جو کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں؟ وہ طنزیہ ہنسنے لگا۔ وہ جو اس سے طلاق کی بھیک مانگ رہی تھی، اس کی بات سن کر پتھر ہو گئی۔ بچپن میں ہوئے ایک حادثے میں روحان خان زادہ کا بڑا بھائی اس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ روحان کا خاندان ہمیشہ سے اسے مراد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا آیا تھا، اور اسی چیز کے لیے بطور سزا اسے زبردستی روحان خان زادہ جیسے گھمنڈی شخص سے بیاہ دیا گیا تھا۔ روحان خان زادہ نے کبھی اسے اپنی بیوی نہیں تسلیم کیا تھا، بلکہ اسے اپنی قید میں رکھ کر تکالیف دینے کا ایک بہانہ بنا لیا تھا۔ ارے لٹل گرل، رو کیوں رہی ہو؟ سپاکی بھرے انداز سے اسے قریب کرتے ہوئے اس کے آنسو بے دردی سے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے یوں رگڑ گیا تھا کہ اس رگڑنے کی جلن اس کے گال سے دل تک اتر آئی تھی۔ بچپن سے آج تک تم سے دیکھا تمہارے خاندان والوں تک کی نفرت صحیح ہے، اور کتنے سالوں سے جو میں عزت برداشت کر رہی ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پلیز اب تو مجھے بخش دو، طلاق دے دو مجھے، اور دھکے مار کر اس حویلی سے نکال دو، تاکہ تمہاری یہ شاندار حویلی میرے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے۔ اس کے بار بار ایک ہی مطالبے پر نہ جانے کیوں مگر اس کے دل میں چبھن جیسا کوئی احساس اجاگر ہوا، تو وہ غصے سے آپ بگولا ہوتے اس کا بازو دبوچ کر اسے خود سے نزدیک تر کر گیا تھا۔ طلاق لے کر یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ بھول گئی تمہارا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر اپنی دہتی سانسوں کی جلن چھوڑتے وہ دبے دبے انداز میں کرا اٹھا تو بازو میں ہو رہی تکلیف کے سبب کرا اٹھی تھی۔ کئی سالوں سے وہ ملک سے باہر اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی وہ پیسوں رات کو واپس آیا تھا۔ اس کی آمد پر آج لال حویلی میں بڑا شاندار جشن منایا گیا تھا، اور اسی رات سندس نے روحان خان زادہ سے بطور معافی اس سے طلاق مانگی تھی۔ میں اپنے نہ کردہ گناہ کی پہلے سے زیادہ سزا پا چکی ہوں۔ پلیز روحان، مجھے بخش دو اور اللہ کے واسطے مجھے آزاد کر دو۔ ایک غلام کو آزاد کرنے کا بڑا اجر ہے، تم مجھے آزاد کر کے گھاٹے کا سودا نہیں کرو گے۔ وہ اس کے حساب میں یوں تڑپ تڑپ کے روئی تھی کہ وہ ایک دم اسے چھوڑ کر کئی قدم اس سے دور ہوا تو وہ گرنے کے انداز میں زمین پر سجدہ ریز ہو گئی۔ شدت گریہ سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اس کی سسکیاں روز کی طرح حویلی کی در و دیواریں خود میں جذب کر رہی تھیں۔ روحان خان زادہ نے لب بھینچے اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھا تو نہ جانے کیوں مگر اسے تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ اس کے یہاں سے جانے سے پہلے تک وہ پھر بھی اتنی بدحال نہیں تھی جتنی اب ہو چکی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت میں زردیاں سی گھلی تھیں، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، بے رونق اجاڑ ہستی اور بنجر لب یوں تھے کہ کبھی بھولے سے بھی میٹھی مسکان نے لبوں کو نہیں چھوا تھا۔ اچھا اٹھو، تو تم نیچے سے آتے سے آتے دماغ خراب کر دیا میرا۔ اس کے دل میں گویا نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، ورنہ اس کا رونا اس پر یوں اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ شاید باہر کے ماحول کی مرہون منت تھا۔ کئی سال اس حویلی سے دور رہ کر شاید اس کے اندر یہاں کے لوگوں کی طرح بے حسی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اب میچور مرد بن گیا تھا، کوئی ٹین ایجر نہیں رہا تھا۔ اس نے نرمی سے روتی ہوئی سندس کو اٹھا کر اپنے بیڈ پر بٹھایا تو اس کی آنکھوں میں حیرانی در حیرانی اتر آئی تھی۔ وہ رکا نہیں تھا بلکہ سائڈ ٹیبل پر رکھے گلاس میں ساتھ ہی رکھے جگ سے پانی نکال کر پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ اپنی رونے کے سبب سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ گلاس واپس رکھتے وہ مزید گویا ہوتے غیر ارادی طور پر اس کی بکھری لٹوں کو اپنے ہاتھ سے سنوارنے لگا، جبکہ وہ ابھی بھی اپنی بادامی آنکھوں کو بڑا کیے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جواب دو۔ اسے یوں ہی خاموش دیکھ اس مرتبہ اس کا نرم لہجہ کچھ سخت ہوا تو اس نے جھٹ نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے شاید اس کی طرف سے اسی جواب کی توقع تھی۔ جب بھی وہ تعصب سے سر ہلاتے انٹرکام پر کھانا لانے کا کہتے خود چینج کرنے جا چکا تھا، جبکہ وہ اب تک صدمے کی حالت میں اس جگہ کو دیکھے جا رہی تھی جہاں پر روحان خان زادہ کھڑا تھا۔ شاید اس کے صبر کو اجر ملنے والا تھا۔ یہی سوچتے وہ اپنی دکھتی آنکھوں کو بند کر کے بیڈ گراؤنڈ سے پشت ملا گئی تھی۔ تم ابھی تک اپنے کوارٹر میں نہیں گئی؟ اما جان کی کرخت آواز اور ملازمہ گھبرا کر پلٹی تھی۔ کچن کی صفائی کر کے بس میں نکل رہی تھی کہ روحان صاحب نے کھانا لانے کا بول دیا۔
हाजरा सर झुकाए जल्दी जल्दी अपने वहां होने की वजाहत दे रही थी। इस घर में सबसे ज्यादा उन्हीं का हुक्म चलता था। उनके हुक्म के बगैर तो इस लाल हवेली का पत्ता तक नहीं हिल सकता था, फिर वो किस खेत की मूली थी। तो इसमें शक्ल बनाने वाली क्या बात है? मेरे बच्चे ने शायद मेहमानों की वजह से ठीक से खाना नहीं खाया होगा। उसे भूख लगी होगी। जल्दी से खाना गर्म करके ले जाओ और पूछ भी लेना उससे कि किसी और चीज की मेरे बच्चे को जरूरत ना हो। लाठी पर जोर देकर पलटती वो तहक्कुम ज़दा अंदाज में बोलती वहां से निकलती चली गई। तो उस मुलाजमा ने शुक्र का सांस लिया। वो इतनी देर तक सुंदुस की वजह से किचन में मौजूद थी। सुंदुस ने आज सारा दिन काम की वजह से कुछ खाया पिया नहीं था। वो सुंदुस के इंतजार में थी ताकि वो उसे अपने सामने खाना खिला दे, वरना इस घर के लोग तो उसके मामले में गोया बेहिस ही थे। इस घर की अपनी बेटी नौकरों से भी बदतर हाल में जी रही थी और उस पर यह जुल्म ढाने वाले उसके सगे रिश्ते थे। वो खाना गर्म करके ट्रे में रखती रूहान के कमरे की जानिब चल दी। दरवाजे पर हो रही दस्तक पर वो पैर बिस्तर से उतारती दरवाजे की सिमत बढ़ गई। बीबी आप यहाँ? दरवाजा खुलने पर हाजरा के लबों से खुशगवार अंदाज में ये अल्फाज अदा हुए थे। हाँ मैं यहाँ। आज जश्न था इस हवेली में तो सबको खैरात और अल्लाह नाम बहुत कुछ दिया गया है। मैंने सोचा मैं भी अपनी आजादी मांग लूं। यासित भरे अंदाज में बोलते हुए वापस अंदर को पलट आई तो हाजरा तेजी से खुद भी अंदर दाखिल होती, ट्रे को सेंट्रल टेबल पर रखती, उसी तेजी से सुंदुस की जानिब आई थी। रोहान खानजादा अभी कमरे में नहीं था, वो उसे समझा सकती थी। बीबी, तलाक मांगने की बेवकूफी मत करें। मैंने देखा रोहान साहब को, वो पहले से काफी बदल चुके हैं। वो आपके सर के साईं हैं, वो आपके साथ होंगे तो किसी की मजाल नहीं आपको सख्त नजर से भी देख ले। उसका हाथ पकड़े वो जल्दी जल्दी बोलती बार बार ड्रेसिंग रूम की दरवाजे की सिमत भी देखी जा रही थी जहां से रोहान ने निकल कर आना था। मुझे यहाँ नहीं रहना हाजरा। मेरा दम घुटता है इस दीवारों के बीच। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं हराम मौत नहीं गले लगाना चाहती, बस इसीलिए तलाक मांग रही हूँ। अपना हाथ उसे गिरफ्त से खींच कर वो थके थके अंदाज में बोलती वापस जाकर बेड पर बैठ गई। तो हाजा ने गहरी सांस खारिज की और दुख भरी नजरों से उसे देखती दरवाजा बंद करके कमरे से निकल गई। तुम अभी तक बैठी हो? खाना शुरू करो। रोहान खानजादा की संजीदा गुस्सैल भरी आवाज पर उसने अपनी दुखती आंखों को उसकी जानिब मरकूज किया था। मुझे भूखा रहने की आदत है। आप अपनी रहमदिली अपने पास रखें। मुझे बस वो अता कर दें साहब जिसकी मैं तलबगार हूँ। रखाई से कहते वो अपनी जगह से उठकर वहां से जाने लगी थी कि रूहान खानजादा ने आगे बढ़कर उसकी कलाई दबोच ली। टांगे तोड़ दूंगा अगर इस कमरे से कदम बाहर निकाले। चुपचाप जाकर खाना खाओ और फिर आराम से यहीं सो जाओ। तुम्हारा फैसला मैं सुबह करूंगा। अपने अजली जलाली मूड में आते वो गजबनाकी से गोया होता उस पर सहम तारी कर गया था। शौहर सुबह से थका आ रहा है, उसके आराम का ख्याल करने के बजाय बस बहस ही की जा रही हो। अब आवाज नहीं आए तुम्हारी? अपनी काली आंखों से उसे घूर कर देखते हुए उसे पकड़कर सोफे पर बिठाता आंखों ही से उसे खाने का इशारा देते खुद बेड की जानिब चल दिया। नाइट ड्रेस में नम बालों में उंगलियां चलाते वो वजी मर्द किसी भी सिन पे नाजुक का ख्वाब हो सकता था, लेकिन बहुत अरसे पहले से सुंदुस ने ख्वाब देखने ही छोड़ दिए थे। अपनी बात मनवानी है तो मेरी बात माननी होगी, वरना हुक्म अदुली की सूरत में मुझे तुम जालिम ही पाओगे। संजीदगी से उसे अपनी बात बावर करवाते वो बिस्तर पर करवट के बल लेटता अपनी तरफ का लैंप ऑफ कर गया था, जबकि संदस उसकी बात को अच्छे से समझती खाने की जानिब मुतवज्जह हो गई थी। आज इतने अरसे बाद उसे इतना अच्छा खाना मिल रहा था, वरना तो वो नौकरों के लिए बनाया गया अलग खाना ही खाती थी। पिलाओ, टिक्का, रोगनी रोटी, सीख कबाब, सलाद, रायता और मीठे में रूहान खानजादा की पसंदीदा खीर मौजूद थी। इसके अलावा भी और खाने दावत का हिस्सा थे, लेकिन हाजरा बस रूहान खानजादा की पसंद के मुताबिक ट्रे सजाकर लाई थी जो सुंदस के हिस्से में आई थी। खाना बहुत लजीज था। उसने जो खाना बेदिली से शुरू किया था वो अब उसे खाने को रगबत से खा रही थी। रूहान खानजादा ने चेहरा उठाकर उसे मगन सा खाना खाते देखा तो सर झटकता वापस तकिए पर सर डालता नींद की वादी में उतर गया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब अफराद खाना मौजूद थे, बस एक वजूद को छोड़कर। वो खामोशी से किचन में खड़ी बाकी मुलाजमी के साथ काम में लगी थी। सुबह वो रूहान खानजादा के उठने से पहले निकल आई थी। रोज की तरह वो नमाज के बाद अपने काम निपटा रही थी। हाथ जाने उसे चाय पकड़ाई तो वो चाय की केतली पकड़े सर पर अच्छे से दुपट्टा जमाए नजरें नीचे किए डाइनिंग हॉल में चली आई। सब नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू भी जारी रखे हुए थे, जबकि रूहान खानजादा जो बिजनेस के हवाले से अपने बाबा से डिस्कस कर रहा था अब उसकी तवज्जो बढ़ चुकी थी। नजरें झुकाए वो सबके कपों में चाय डालती जिस खामोशी से आई थी उसी खामोशी से पलट भी चुकी थी। उसकी रुकी सांसें किचन में आती बहाल हुई थी। वो एकदम हंसी थी, टूटे कांच जैसी हंसी जिसके धागे में दर्द पिरोया गया था। सब मुलाजमीन ने उसे बरसों बाद यूं हंसते देखा था, लेकिन हाजरा ने सोचा कि काश वो अब नहीं हंसती तो अच्छा ही था। तो साबित हुआ कि महरम का साथ हर सर्दो गर्म से बचा लेता है। आज उस शख्स की भी जरूरत नहीं हुई थी कि उसे अपनी हवस भरी नजरों से देख लेता या किसी बहाने से छू लेता। चलो तुम्हारे होने का एक फायदा तो हुआ रूहान खान ज्यादा।
तलक गोई से सर झटकती वो हाजरा की सिंध बढ़ी जो उसे चाय का कप पकड़ा रही थी। साथ ही उसे टोस्ट और मक्खन भी लगा कर दिया था। ये खा लें, फिर मैं आपको दवा देती हूँ। वो बिल्कुल किसी बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखती थी। ये नहीं था कि इस हवेली के सभी लोग जालिम थे, लेकिन जालिम के सफ में खामोश तमाशाई बने वो भी जालिम ही कहलाए जाने थे। वो जानती थी कि हाजरा उसकी चच्ची के कहने पर उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन इस ख्याल का क्या फायदा जब वो सबके सामने उससे अनजान बन जाती थी। उसे इस तरह की हमदर्दी तो नहीं चाहिए थी, उसे अपना हक चाहिए था, हमदर्दी नहीं। तुम इतने वक्त बाद तो वापस आए थे, अब इतनी जल्दी क्या है शहर जाने की? अम्मा जान खफा हो रही थी, जबकि उसके बाबा, ताया, चाचा और दीगर कजन के साथ बाकी खवातीन खामोशी थीं। अलबत्ता उसकी माँ की नजरों में भी अम्मा जान की तरह खफगी साफ नजर आ रही थी। कल मुझे हर हाल में ऑफिस जाना शुरू करना है। सब कुछ अरेंज हो चुका है, 2 माह पहले तमाम इंटरव्यूज हो चुके, सब फाइनलाइज है। आप सबके इल्म में है कि ये जिम्मेदारी और सियासत मेरे शौक नहीं है। मुझे बिजनेस करना पसंद है और मैं वही कर रहा हूँ। अब इसके लिए मुझे शहर में ही रहना है। अब रोज तो मैं 4 घंटे आने और 4 घंटे जाने में नहीं गंवा सकता ना। वो अपनी आदत के मुताबिक एकदम से बोलने के दौरान ही झुंझुला उठा तो उसके बाबा ने अपनी माँ और बीवी को खामोश रहने का इशारा दिया था। तुम अपना बिजनेस करो मेरे बच्चे, तुम्हें कौन रोक रहा है? ये तो बस यूं ही तुम्हारी फिक्र में बोल रही थी। यहाँ सब है, वहां तुम शहर अकेले रहोगे। वो गोया प्यार से उसे समझाकर उसका गुस्सा काफी हद तक कम करने में कामयाब हुए थे। मैं वहां अकेला नहीं होऊंगा, मुलाजमीन होंगे, और जहां तक रही मेरी देखभाल की बात, तो सुंदस मेरे साथ शहर जाएगी और वही मेरी सारी जिम्मेदारी आज के बाद उठाएगी। उसने गोया कतई लहजे में कहते बात ही खत्म कर डाली, लेकिन अम्मा जान को उसकी बात से सख्त इख्तलाफ हुआ था। वो क्यों जाएगी तुम्हारे साथ शहर? वो अपनी नफरत और इश्तियाल दबा नहीं पा रही थी। और वो क्यों नहीं जा सकती मेरे साथ शहर? बीवी है मेरी और मेरे काम से लेकर आराम तक की जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। उसके नागवार लहजे पर उसकी माँ को एकदम हौल उठे थे। इतनी जल्दी तुम अपने भाई की मौत को भूल गए? उस डायन को अपनी बीवी की जगह भी दे दी? वो गोया गुस्से में पागल हुई थी। आप शायद भूल गई हैं तो याद करवा दूं कि आप लोगों ने बजाते खुद उसे मेरी बीवी बनाया था। तो अब ये प्लीज सब जज्बाती पचकाना बातें मेरे सामने बंद करें। वो गोया बेजार होते आधे नाश्ते से ही उठकर अपने कमरे के जाने बढ़ने लगा, जब हाजरा उसे वहां आती दिखाई दी थी। तैयारी कर लो तुम भी, आज शाम तुम भी हमारे साथ शहर चल रही हो। तहकुम ज़दा बारूब लहजे में अपनी बात कहते हुए लंबी लंबी डग भरता वहां से निकलने से पहले सुंदर को कमरे में भेजने का हुक्म सादर कर गया था। बेड पर खुले बैग में वो अपना जरूरी सामान रख रहा था। एक सफरी बैग तो उसका वैसे ही बंद था, उसने उसे शहर जाकर ही खोलना था। उससे कमरे में आए आधा घंटा होने वाला था और सुंदुस अभी तक कमरे में नहीं आई थी। इस हुक्म अदुली पर उसके गुस्से का गिराव बढ़ता ही जा रहा था। हाथ में पकड़ी चीजें जिन्हें वो तरतीब बार रख रहा था, तकरीबन वो चीजें गुस्से में बैग में पटक रहा था या ठूसने के अंदाज में फेंक रहा था। जब दरवाजा खुलकर बंद हुआ, वो धीमे कदमों से उसकी पुश्त पर आन खड़ी हुई थी, लेकिन कुछ फासले पर। तुमने बुलाया था? उसकी मुद्दम आवाज जुकाम ज़दा से थी, जिसे वो अपने गुस्से में महसूस नहीं कर सका, और शदीद इश्तियाल में उसकी तरफ रुक कर गया, जो सर झुकाए मुजरिमों की तना खड़ी थी। उसने गुस्से में उसकी ठोरी दबोच कर उसका चेहरा जो ही ऊंचा किया, उसकी आंखें फैल गईं। ये किसने किया? उसके दुपट्टे को एक झटके से उसके सर से खींचकर दूर फेंकते वो गोया दीवाना सा हुआ था। उसका गाल होठ तक सूज गया था, होठ के किनारे से खून रिस रहा था, जबकि बादामी आंखों का वो दर्द रूहान खानजादा के दिल पर गोया कयामत ही ढा गया था। कुछ पूछ रहा हूं मैं? वो गोया उस लम्हे उसके जब्त को आजमा रही थी। तुम्हें मेरी तकलीफों से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए रूहान खान ज्यादा। वो उसकी फिक्र पर गोया तड़प उठी थी, यूं जैसे उसके जख्मों पर उस शख्स ने नमक पाशी कर डाली हो। ये जख्म जो तुम्हें अब नजर आ रहे हैं, ये तो पहले दिन से मेरे वजूद और रूह का हिस्सा है। तो अपनी ये फिक्र अपने पास रखो और वो काम बताओ जिसके लिए। वो बात भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी जब मुकाबिल ने झपट कर उसका दुपट्टा उस पर से फिर से उड़ाया और उसकी कलाई दबोचे वो उसे कमरे से लेकर निकला। तो वो राहदारी सीढ़ियां तय करते उसके साथ अम्मा जान के कमरे में जाकर ही ठहरी थी, क्योंकि वो उसका हाथ पकड़े उसे अपने सामने कर गया था। अम्मा जान ने अपने पोते का गजबनाक चेहरा बगौर देखा। आपने मारा है सुंदुस को, मगर क्यों और किस हक से? वो क्या बोल रहा था? उन दोनों को उसके सवाल से लगने वाला झटका जोरदार था। ये मेरी बीवी है, बेशक मुजरिम सही, लेकिन इसे सजा देने का इख्तियार रुहान खानजादा के सिवा किसी के पास नहीं। वो बोला नहीं था, धाड़ा था, जबकि सुंदस इस लम्हे बेहोश हो जाने के दर पे थी। वो क्यों उसका हिमायती बन रहा था? वो बुरा था तो बुरा ही रहे, अच्छा बनकर क्यों उसके दिल के साथ खेलना चाह रहा था? वो क्या अब इस तरह से तोड़ना चाह रहा था? वो सर झुकाए मुसलसल यही बात सोचे जा रही थी। उसने देखा नहीं, लेकिन एक एक करके सभी लोग अम्मा जान के कमरे में जमा होना शुरू हो चुके थे।
آج کے بعد سزا ہو یا مار، میرے سوا کوئی اسے نہ دیکھے گا اور نہ ہی چھوئے گا۔ یہ بات سب اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ میں ایک ہی بات بار بار دہرانے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ بات اس نے سبھی کی جانب دیکھ کر جس وارننگ دیتے انداز میں کہی تھی، اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اس کے سامنے بول سکے۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس جا چکا تھا، جبکہ اس کی ماں اپنی ساس کے پاس آ کر بیٹھتی رونے لگی تھی، جو رشتے میں اس کی سگی خالہ بھی لگتی تھی۔ دیکھا آپ نے خالہ جان، اس لڑکی نے پہلے ایک بیٹا مجھ سے چھینا اور اب دوسرے کو بھی دور کر رہی ہے۔ وہ ان کے گلے لگے بری طرح رو رہی تھی۔ میسنی ہے پوری اپنی ماں کی طرح، کم وقت وہ خود تو مر گئی، ساتھ میرا بیٹا بھی لے گئی اور اس جی کے جلاپے کو یہاں چھوڑ گئی۔ کاش جس دن وہ گاڑی میں بیٹھ کر شہر جا رہے تھے یہ منوس ماری بھی ان کے ساتھ چلی جاتی تو یہ دکھ تو ہمیں برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ وہ زہر کنسا بول رہی تھی۔ سندس ان کے دوسرے نمبر والے بیٹے کی اولاد تھی۔ اس نے ان کی مخالفت کرتے اپنے باپ کی منگیتر کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ ایک وقت اس کے باپ اپنی منگیتر کے عشق میں مبتلا تھے، لیکن خاندانی رنجش کی وجہ سے ان کی منگنی ختم کر کے ان کے ماموں نے اس کی شادی اپنی بیوی کے خاندان میں زبردستی کر ڈالی تھی۔ جب اما جان بیاہ کر ان کے والد کی زندگی میں آئیں، وہ اپنی محبت کے لیے بالکل ہی دیوانے ہوئے پڑے تھے۔ انہوں نے بمشکل انہیں سنبھالا تھا، لیکن ان کے دل میں اس لڑکی کے لیے ایسی نفرت پیدا ہوئی تھی کہ وہ آج تک اس نفرت کو کسی قیمتی شے کی طرح دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ کسی بے جان شے کی طرح وہ اس کے ساتھ واپس کمرے میں آئی تھی۔ وہ یوں ہی اس کی کلائی پکڑے اسے صوفے پر بٹھا کر ڈریسنگ روم میں گم ہوا تو سندس نے اپنی کلائی کو بغور دیکھا۔ اس کی مضبوط گرفت کی بدولت کلائی کی وہ جگہ سرخ پڑ گئی تھی، لیکن اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہاں ایک دہتے ہوئے لمس کا پرزور اثر تھا۔ وہ گم سم سی بس کلائی کو گھورے جا رہی تھی۔ جب روحان خان زادہ ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس پکڑے واپس آتا، صوفے پر اس کے نزدیک ترچھا ہو کر بیٹھا تھا۔ میری طرف چہرہ کرو، تحکم زدہ سرد لہجہ سنتے اس کی گردن بھی کانی انداز میں گھومی اور پھر وہ خود بھی اس کے سمت گھوم گئی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ درد دیتے انسان نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا۔ وہ یک تک بس اسے دیکھے ہی جا رہی تھی، یوں کہ اب اس کی آنکھوں میں جلن سی پیدا ہو گئی تھی۔ یوں دیکھ کر تم مجھے شرمندہ نہیں کر سکتی ہو، اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا گلٹ ہو رہا ہے۔ بس مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کسی انسان سے غیر انسانی سلوک کیا جائے۔ اگر تمہاری جگہ حاجرہ بھی ہوتی تو میں یہی کرتا۔ وہ کیا بول رہا تھا اسے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو بس اسے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے پہلی مرتبہ دیکھا ہو۔ اٹھو اور جا کر بیڈ پر لیٹو، کچھ دیر سو جاؤ، لنچ کے وقت میں اٹھا دوں گا تمہیں۔ پیکنگ کی فکر مت کرنا، حاجرہ کر دے گی، فی الحال تم جا کر آرام کرو۔ ہنوز اسی اکھڑے لہجے میں بولتے وہ سب سامان سمیٹتا واپس ڈریسنگ روم میں گم ہوا، اور پھر چند منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے کھلے بیگ کو بند کر کے ایک طرف کھڑا کیا اور واپس سندس کے پاس آتے اس کی کلائی پکڑ کر اسے بستر پر لٹا دیا۔ لگتا ہے تھپڑ کا اثر دماغ پر ہو گیا۔ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اس پر کمفرٹ درست کرتا اے سی آن کرتے خود کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ اپنے ارد گرد اس کی خوشبو محسوس کرتی ابھی تک دم سادی ہوئی تھی۔ اپنے چہرے پر مقابل کی سانسوں کی دہک اور پرتپش لمس اس کے دل کو موم کی مانند پگھلا رہا تھا۔ وہ بے خیالی میں بس اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ اسے بخار بھی تھا، جس سبب روحان نے اسے میڈیسن بھی دی تھی۔ جبھی کچھ دیر میں ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس کے آنے کا ایک فائدہ تو ہوا تھا کہ اب وہ بے فکری کی نیند لینے لگی تھی، ورنہ تو رات بھر وہ خود کا ہی پہرا دیا کرتی تھی۔ اس گھر میں نقب زن بھی تھے جن سے وہ نہ جانے کب سے اپنی عزت بچاتی آ رہی تھی۔ وہ لوگ رات گئے شہر پہنچے تھے۔ رستہ طویل تھا جس سبب بمشکل ڈنر کرتے وہ سونے چلے گئے تھے۔ یہاں اسے ایک الگ روم دیا گیا تھا جو آرام دہ ہونے کے ساتھ ساتھ کشادہ بھی تھا۔ اس کے روم میں بالکنی بھی تھی جس کا سرا روحان خانزادہ کی بالکنی سے جا ملتا تھا۔ ساتھ ہی گولائی کو جاتی سیڑھیاں بھی تھیں جو سیدھی لان میں جا کر ختم ہوتی تھیں۔ وہ یہاں آ کر بہت حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ روحان خانزادہ کی روٹین بہت سخت تھی۔ وہ اس کے سونے کے بعد گھر آتا تھا اور اس کے جاگنے سے پہلے چلا جاتا تھا۔ ایک ہفتے سے اس کی یہی روٹین تھی، جبکہ سندس تو کبھی کچن میں حاجرہ کے ساتھ لگی ہوتی تھی تو کبھی مالی کے ساتھ لون کی کاٹ چھانٹ کرتی نئے پودے لگوا رہی ہوتی۔ یہاں گھٹن نہیں تھی، آزادی کا سا احساس تھا جو یقیناً اسے بے درد کی مرہون منت تھا۔ اس کی اچھائیاں دن بدن اسے اس شخص کا گرویدہ ہی کرتی جا رہی تھی، حالانکہ وہ دل کو ڈپٹ دیتی تھی، لیکن نظروں کا کیا کرتی جو اکثر ہی بے چین رہتی تھیں۔ آج اتوار تھا، اسے کچھ سستی سی محسوس ہو رہی تھی جبھی وہ اتنی دیر بستر میں گھسی رہی تھی۔ جس وقت وہ بات دے کر نم کھلے بالوں کے ساتھ نیچے اتری اس کے علم میں نہیں تھا کہ نیچے روحان خان زادہ بھی موجود ہے۔ اس کا دوپٹہ لاپرواہی سے کاندھے میں پڑا تھا۔ اندرونی گھر والے حصے میں کسی میل سرونٹ کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جبھی وہ گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی اس کا دوپٹہ یا تو گلے میں جھول رہا ہوتا تھا یا شانے پر لٹکا ہوتا تھا۔ حاجرہ پلیز مجھے ایک گلاس جوس دے دیجیے۔ اپنا سر ڈائننگ ٹیبل پر ڈالتے اس کا انداز اس وقت بھی سست ہی تھا۔ دن کے 12 بج چکے تھے، 1 گھنٹے بعد لنچ ٹائم ہو جانا تھا۔
खाली जूस क्यों बीबी, साथ ये सैंडविच भी खाएं, लंच में भी वक्त है। हाजिर ने उसके सामने ट्रे रखी थी जिसमें जूस के गिलास के साथ प्लेट में सैंडविचेस भी रखे थे। हाजरा, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता, खुश दिली से कहती वो खाने में मशगूल हो चुकी थी। खाते हुए बार बार उसकी शरीर जुल्फें उसके चेहरे पर बिखरती, उसे डिस्टर्ब करती तो वो गर्दन झटक देती, नाक चढ़ाती तो कभी होंठ बनाती। घनी चुलमन के उठने गिरने की अदा, वो अपने हुस्न से लापरवाह थी और यही लापरवाही किसी को बुरी तरह उसके जाने मुतवज्जह करने का सबब बन रही थी। वो जो किसी अहम फाइल के मुताले में गरक था, सुंदुस की आमद पर उसने बस एक नजर उस पर डाली थी। वो सिटिंग एरिया में बैठा हुआ था। सुंदुस जिस वक्त वहां आई थी, उसकी रूहान खानजादा की जानिब पुश थी, जब भी वो खुद में मगन उसे नहीं देख पाई थी, जबकि वो उसे देखने के बाद से गोया वो हर शय से गाफिल हो चुका था। अंगूरी रंग के लिबास में वो दिलो नजर में एक ताजगी का एहसास उजागर कर रही थी। ये पहली मर्तबा था कि वो उसे यूं देखकर बेखुद हुआ था। उसके शहद रंग बाल उसकी पुश्त से नीचे जा रहे थे। एक हफ्ते में ही उसकी सेहत पर काफी अच्छे असरात मुरतब हुए थे। उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान खिल रही थी। जर्दियां गोया धूल हुई थी, जबकि लब मुसलसल हरकत में रहते उसका करार लूट रहे थे। वह हाजरा से मुसलसल कोई ना कोई बात करना शुरू हो जाती थी। किचन और डाइनिंग टेबल के दरमियान इतना फासला नहीं था। उसका कयामत खेज सरापा हर तरह से आया था। दुपट्टा तब से उसकी हाथों की हरकत की वजह से उसकी गोद में आन गिरा था। बातों के दरमियान उसे लग रहा था कि वो किसी की नजरों के हिसार में कैद है। सभी उलझन के सबब उसकी तेवरी पर बल पड़े थे। साथ ही उसकी नजरों ने जो अपना जाविया बदला, सामने बैठे रूहान खानजादा को अपनी संत पूरी तरह मुतवज्जा देख वो बौखलाकर कुर्सी से उठी। एकदम उसकी टांग साथ वाली कुर्सी से टकराती उसकी कराह का सबब बनी थी। जबकि मुकाबिल का सख्ता टूटा था, वो फुर्ती से उस तक पहुंचकर उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर गोद में भरकर उठाते सीधा वहां से निकला तो अपने कमरे में उसके कदम आकर ठहरे थे। उसने एहतियात से उसे बिस्तर पर बिठाया और तेजी से ड्रेसिंग की दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके कदमों में पंजों के बल जो ही बैठा वो चीख पड़ी। क्या कर रहे हैं आप? वो बुरी तरह बौखलाकर उठने ही लगी थी कि उसके चेहरे पर छाए खतरनाक तेवरों को देख वो वहीं दबक कर बैठ गई थी। इस चीज की उजलत थी तुम्हें? क्यों इस कदर हवास बाख्ता से उठी थी? शौहर को देखा था, भूत को नहीं, जो यूं रिएक्शन दिया था। अपने रोबदार अंदाज में उसे दुपटने के साथ साथ उसने उसके ट्राउजर का पांचा ऊपर को फोल्ड करना शुरू कर दिया। उसके हर हर अंदाज में इस्तेहाक झलक रहा था, जबकि वो सुरख चेहरे के साथ उसके खौफ में मुब्तला उसे ये सब करने से रोक भी नहीं पाई थी। टकराने के सबब उसके घुटने से कुछ नीचे वाली जगह नीली सी पड़ गई थी। उसने तासुब से सर झटकते उस पर नरमी से दवा लगाई थी। मोम की तरह नाजुक वजूद है तुम्हारा। अब डरता हूं कि अगर सख्ती से छुआ तो तुमने टूट ही जाना है। मेरे अरमान तो गोया राख उड़ाते महसूस हो रहे हैं। उसकी जुमाइनी बात का मतलब समझते वो एकदम से सुर्ख अनारी होती फिर से तेजी से उठने लगी थी कि वो उससे बुरी तरह से निपट गया। सुकून से क्यों नहीं बैठ रही हो? कांटे हो गए हैं बिस्तर में। उसे अपनी काली बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए वॉशरूम में गुम हुआ था और उसके बाद वहां से वापस आकर उसने ड्रेसिंग टेबल के दराज से एक नीली फाइल बरामद की और उसके साथ ही आकर बैठ गया। यूं के दोनों के दरमियान हवा बराबर बमुश्किल फासला भी नहीं बचा था। मुकाबले का कंधे उसके उसके कंधे से मिस हो रहा था और तो उसकी टांग सुंदुस की टांग से जाकर मिल रही थी। इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन दरकार है। तुम्हें मेडिकल में पढ़ने का शौक था ना, तो अब तुम यहाँ रहकर अपने शौक पूरे करो। वैसे भी सारा दिन कभी किचन तो कभी लॉन, अपना वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम पढ़ लिख लो, ताकि मेरे बच्चे फखर से लोगों को बता सकें कि हमारी मामा डॉक्टर है और हमारे डैड एक बड़े बिजनेसमैन। अपने मजाज खुदा की पहली बात सुनते जहां उसका खुशी के मारे चीख पड़ने का दिल किया था, वहीं उसकी आखिरी बात उसके सर से गुजरी थी। बच्चे? किन बच्चों की बात कर रहे हैं आप? बदामी आंखों में नासमझी भरे मासूम तासुरात लिए वो मुकाबिल को किसी गुस्ताखी पर उकसाने लगी थी। मैं हमारे बच्चों की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं लेकिन कुछ वक्त बाद तो होगी ना हमारी औलाद। उसके बोलने का अंदाज शर्मिंदा करने वाला था, लेकिन वो तो इतनी बेबाक सुनती हया से सुरख पड़ी थी। चलो अब लंच तक यहीं आराम करो, बाद में अपने रूम में चली जाना। उसके शानों पर वजन दिए वो उसे बेड पर लिटाते उस पर झुकाया था, क्योंकि मुकाबिल की सांसों की तपिश उसकी सांसों में घुलने लगी थी। शहर का पानी तुम्हें रास आ गया है, हसीन से हसीन तर हो रही हो तुम, यूं कि मैं बहक रहा हूँ। उसके मखमली गालों को छूते गोया वो मदहोश हुआ था, जबकि सुंदुस का दिल धड़क धड़क कर जैसे पागल ही हो जा रहा था। रोहान प्लीज। मुकाबल के इस्तेहाक का दायरा बढ़ा तो वो घबरा कर बोल पड़ी। उसके झील सी आंखों में नमकीन पानी तैर रहा था, जबकि चेहरे पर एक सहम सा तारी था। सॉरी, मुझे अचानक तुम्हें यूं डराना नहीं चाहिए था। वो माजरत करता उसके ऊपर से उठकर अपने बालों में हाथ फेरता तेजी से कमरे से निकल गया था, जबकि वो गहरी गहरी सांसें भरती खुद को ये यकीन दिला रही थी कि ये मुकाबिल उस पर यूं भी मेहरबान हो सकता है।
रोहान खान ज्यादा ने उसका मेडिकल में एडमिशन करवा दिया था। वैसे भी अगर हालात बेहतर होते तो वो मेडिकल में ही होती। ये उसका ख्वाब था और ये ख्वाब अब जाकर मुकम्मल होने को था। रोहान खान ज्यादा ने उसके लिए एक अलग काबिल एतबार ड्राइवर का इंतजाम किया था, क्योंकि उसकी टाइमिंग तो अक्सर आउट ही रहती थी। वो कॉलेज से वापसी पर जो घर लौटती, लाल हवेली से आई अम्मा जान की मखसूस गाड़ी देख उसके कदम रुके थे। ये यहाँ क्यों आई है? उनकी आमद उसके लिए यकीनन परेशानी का बायस थी, लेकिन अंदर तो जाना ही था। जब भी वो दिल कड़ा करती, अंदर की जाने पड़ गई। काली शीशे वाली चादर से खुद को कवर किए जिस वक्त वो अंदर पहुंची, उसका पहला सामना उन्हीं से हुआ था। वो सिटिंग एरिया में बड़े क्रूफर से बैठी उसे सर से पैर तक तनकीदी नजरों से देख रही थी। उसके किए गए सलाम का जवाब भी उन्होंने देना जरूरी नहीं समझा था। तुम्हें देखकर लगता है कि कूड़े के दिन भी फिरते हैं। उनके हकारत भरे लहजे को सुनते उसने अपने लब भींचकर खुद पर जब्त किया था। मेरे पोते की कमाई बड़े अच्छे से उड़ाई जा रही है। तुम्हें तो शहर आकर बिल्कुल ही पड़ लग गए हैं। उनके नफरत में डूबे तंज के तीर बढ़ते ही जा रहे थे। रोहान मेरे शौहर हैं। वो मुझे जिस तरह रखते हैं, मैं उसी तरह रह रही हूँ। अगर वो मुझे नौकरानी का दर्जा देते तो मैं उसी तरह रहती, लेकिन उन्होंने मुझे मलका का मुकाम दिया है, तो मैं इसी रूप में नजर आ रही हूँ आपको। बगैर कोई गुस्ताखी वो अच्छे से उनकी बोलती बंद करवाती अपने रूम की जाने पड़ गई, जबकि किचन की चौखट पर खड़ी हाजरा भी तेजी से वापस किचन में घुसती अपनी मुस्कुराहट दबाते लंच लगाने की तैयारी करने लगी थी कि कुछ देर में रूहान भी वहां पहुंचने वाला था। सुंदस को बुलाएं, वो भी हमारे साथ लंच करेगी। डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर बैठते हुए हाजरा से संजीदगी से मुखातिब हुआ, जो पिलाओ की ट्रे अम्मा जान के सामने रख रही थी। फौरन उसके हुक्म की तामील में वहां से निकल गई थी, जबकि अम्मा जान के माथे पर नागवारी के सबब बल पड़े थे। उसका यहाँ क्या काम? वैसे ही तुमने उसे शाही जिंदगी तो दे दी है, महंगे कपड़े, अच्छा रहन सहन। अब क्या मेरे सर पर भी उसे मुसल्लत करना चाहते हो? वो खफगी जताते एकदम से तेज लहजे में गोया हुई थी। वो मेरी बीवी है। ये बात क्या बार बार दोहरानी पड़ेगी? मैं पहले ही नाहक उसके साथ ज्यादती का मुरत्तिब हो चुका हूँ। मस्जिद को ज्यादती करके मैं अपने रब का गुनहगार नहीं बन सकता। वो गोया अब चिढ़ने लगा था, बार बार एक ही बात सुन सुन के। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया था। वो उस लम्हे भड़क चुकी थी। वो उस वक्त इतना शऊर नहीं रखती थी। खेल खेल में धक्का लगा था और भाई तो जमीन से बस 3 स्टेप ऊपर थे, नीचे गिर गए। मैं भी तो अपने स्कूल में सीढ़ियों से गिरा था, याद है आपको? और मुझे तो पूरे 10 टांके भी आए थे, लेकिन मैं बच गया। क्यों? क्योंकि मुझे अभी और जीना है। लेकिन भाई की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। मैं ये बात समझ चुका हूँ अम्मा जान, और अब आपको भी इस बात को समझने की जरूरत है। वो बस एक हादसा उससे अनजाने में पेश आया, लेकिन हम सब ने जानबूझकर उसके साथ जुल्म किए हैं। तो बताएं गुनहगार कौन हुआ? वो तल्ख नहीं हुआ था, बल्कि उसके बात करने का अंदाज रसान भरा था। जबकि पिलर की आड़ में खड़ी सुंदस का दिल मजीद अपने मजाजी खुदा का असीर हुआ था। बेशक उसने अपने केक की माफी नहीं मांगी थी, लेकिन वो अपने जानिब से की गई ज्यादती का मदावा जरूर कर रहा था। प्लीज अम्मा जान, भूल जाएं पिछली बातों को और अपना दिल बड़ा करें। माफ कर दें उसे। इस मरतबा वो उनका हाथ थामकर लबों से लगाते इल्तिजा करने लगा, तो वो नम आंखों से मुस्कुराती उसका गाल थपथपा गई थी। यही वो वक्त था जब सुंदर धीमे अंदाज में सलाम करती वहां चली आई और खामोशी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। खाने के दौरान वो अम्मा जी से लाल हवेली के लोगों का अहवाल ले रहा था, जबकि वो पुरसकून सी अपना खाना खा रही थी, जब मुकाबिल अचानक ही उससे मुखातिब हुआ। आज तुम्हारा टेस्ट था ना? कैसा गया टेस्ट? उसके रोबदार अंदाज से सफसार करने पर उसने झुका सर उठाकर अपनी बादामी आंखों को झपकाकर जैसे मुकाबले पर फिर कोई सहर फूंका था। टेस्ट तो बहुत अच्छा गया, बल्कि मेरे सब ही प्रोफेसर मुझसे खुश हैं। अब तक मेरी पढ़ाई में परफॉर्मेंस अच्छी है। बेशक आप उनसे पूछ सकते हैं। वो जल्दी जल्दी बोलती गोया जान खलासी चाह रही थी, साथ साथ घबराहट के मारे बार बार अपने लबों को आपस में मसलती मुकाबले के जब्त को भी आजमा रही थी। वो मैं पूछ ही लूंगा। अब तुम ठीक से खाना खाओ। सारी बातों के जवाब में वो उसे डिपट कर बमुश्किल उसके सुर्खी माइल लबों से नजर चुरा सका था, जबकि अम्मा जी खामोशी से अपना खाना खत्म कर रही थी। उन्हें इस लम्हे ये तो इत्मीनान था कि सामने बैठी लड़की पर रूहान का खूबी रोक था। वो ठीक से उससे बात भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो अपने पोते की नजरों में उस लड़की के लिए जो कुछ देख रही थी, वो गोया उन्हें जलते तवे पर बिठाने के मुतरादिफ था। आज रूहान का बर्थडे था, लेकिन इसकी वही मसरूफियत थी। वो जिस वक्त सोकर उठी, वो ऑफिस जा चुका था। अम्मा जी को भी हवेली वापस गए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। वो बस एक दिन के लिए ही आई थी। सुबह नाश्ते के बाद वो वापस हवेली चली गई थी। वैसे भी हवेली के बगैर उनका कहीं दिल नहीं लगता था। हाजिरा के जरिए उसने रूहान के लिए एक अच्छा सरप्राइज तैयार किया था।
खाना उसने खुद बनाया था। उसे इल्म था कि वो हद से हद 9 बजे तक आ जाएगा, लेकिन इत्तेफाक था कि 10 बज चुके थे और उसकी आमद के आसार नहीं थे। वो सारा दिन की थकी हुई थी, भूख भी जोरों की लगी थी और नींद भी खूब ही आ रही थी। 2 मरतबा तो वो झपकी भी ले चुकी थी। अनारी रंग की कटवर्क फ्रॉक में उसका नाजुक सरापा सच गया था। उसने अभी तक अपने लिए कुछ खुद जाकर नहीं खरीदा था। उसकी ज्यादातर शॉपिंग रुहान खानजादा ने बजाते खुद की थी। अब बाकी जो जरूरत की चीजें थी वो उसने ऑनलाइन मंगवा ली थी, जिसका तरीकेकार भी रुहान खानजादा ने उसे बताया था। उसकी हर चीज आला ब्रांड की थी। उसकी की गई शॉपिंग में से उसने आज ये लिबास मुंतखब किया था। घड़ी की सुइयां मजीद आगे बढ़ी और उसके इंतजार में बैठी सुंदुस की गर्दन ढलक कर मखमली बेड क्राउन से जा टिकी थी। रोहान ने जिस पर घर में कदम रखा वो गोया थकन से बेहाल था। आज उसका बर्थडे था और सुबह से लाल हवेली से सभी के फोन कॉल्स आ चुके थे। वो सब चाहते थे कि वो हवेली आए, लेकिन वो क्या करता। मसरूफियत की वजह से तो वो अभी तक ढंग से पुरसुकून नींद भी नहीं ले पाया था। सभी ऑफिस के लोगों और जानने वालों ने आज उसे विश किया था और जिसकी विश का उसने शिद्दत से इंतजार किया वहां फकत खामोशी थी। उसने दिन में कई मरतबा अपना फोन इस आस पर चेक किया कि शायद उसने कोई छोटा सा मैसेज ही कर दिया होगा, लेकिन मुकाबिल के लिए शायद वो कोई अहमियत ही नहीं रखता था। थके थके कदम कमरे तक आकर ठहरे और फिर वो दरवाजा धकेल कर जो ही कमरे में दाखिल हुआ, अंदर का माहौल देख उसके बाजू पर डाला कोट जमीन बोस हुआ था। फ्लावर्स और हार्ट बैलून्स के साथ उसके कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सेंट्रल टेबल पर उसका फेवरेट व्हाइट चॉकलेट केक रखा था, जिस पर बेहद खूबसूरत खूबसूरत गुलाब बनाया गया था। उसकी बेचैन नजरों ने सरप्राइज देने वाली को ढूंढा तो नजरें गोया उस हसीन मंजर पर जम सी गई थी। वो उसके बेड पर इस्तेहाक से बैठी शायद उसके इंतजार में सो गई थी। कोट वहीं छोड़ उसने पलटकर डोर लॉक किया। अब जो उसके कदम अपनी बेड की जानिब उठ रहे थे तो गोया बहके बहके से थे। वो उसके करीब बैठकर अपनी आंखों को उसके हुस्न से सराब करने लगा। दुपट्टा शाने से ढलक कर गोद में गिरा था। गर्दन ढलकने की वजह से उसकी शहद रंग जुल्फें बिखरती उसके शाने से होती तकिए पर फैली थी। लंबी घनी पलकें आर्स पर सिद्धा रेस थी। बहकती बेबाक नजरें गालों से होती भरे भरे लबों तक गईं और वहां से फिसलती गर्दन की चमकदार जल पर ठहर गईं। उसने कान में जो गोल चूड़ी के बराबर बाली पहनी थी वो उसकी गर्दन के जल को चूमती उसे अजीब से जलन में मुब्तला करने लगी। तो उसने जो ही हाथ बढ़ाकर उन्हें उसके कान से उतारना चाहा वो हड़बड़ाकर उठती एकदम सीधी हुई। कच्ची नींद के सबब सुरख आंखों ने जो ही मुकाबिल को देखा तो एकदम घबराकर उठने लगी थी कि उसने सुरह से उसकी कलाई पकड़ते उसे अपनी जानिब खींच लिया। वो मुकाबिल की इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी, जब भी सीधी उसकी गोद में जाकर बैठी थी। मेरी वाइफी ने मेरे लिए इतना जबरदस्त सरप्राइज अरेंज किया है, शुक्रिया तो फिर बनता ही है। प्यार से उसकी नाक से नाक टकराते उसका अंदाज दिल भराई था, जबकि वो ये जुर्रत करने के बाद अब कुछ सहमी सहमी सी थी। सच पूछो तो आज सारा दिन तुम्हारे विश न करने पर मेरा दिल उदास रहा था, लेकिन मुझे इल्म ही नहीं था कि तुम मेरे लिए ये सब एहतमाम करोगी। पूरी तवज्जो से उसकी जुल्फों को चेहरे से समेटते मुकाबिल का हर अंदाज मोहब्बत से लबरेज था, जबकि वो उसके बोलते लम से मुसलसल खुद में सिमटती जा रही थी। कमरा सजाओ और तुम भी यूं सच सवर कर मेरा इंतजार कर रही हो। आखिर इरादे क्या हैं? क्या जान लेना मकसूद है? सारे बाल समेटकर उसके बाएं कंधे पर मुंतकिल करते मुकाबिल का लहजा बोझल सरगोशी से ऊपर नहीं था। वो दरअसल आज आपका बर्थडे है तो बस इसी वजह से मैंने ये सारी तैयारी की है। खाना भी अपने हाथ से बनाया और कब से आपका इंतजार करते न जाने कब मेरी आंख लगी। सॉरी। वो घबराई बौखलाई मजीद उसे खुद में कैद करती जा रही थी। वो गोया चारों शाने चित हो चुका था। मतलब तुम अभी तक भूखी मुझ पर और खुद पर जुल्म ढा रही हो। मुकाबिल का रोमांटिक अंदाज पल में रोबदार हुआ तो वो मीनी सी शक्ल बनाती झट से इस बात में सर हिला गई। तो वो उसकी इस मासूम अदा पर फिदा होता उसे अपनी शिद्दत का एहसास दिलाते एक शोक जिशारत करते मुकाबिल को खुद में पनाह लेने पर मजबूर कर गया था। पहले खाना खा लेते हैं, फिर केक कट करके मैं तुमसे अपनी पसंद का तोहफा लूंगा। रोहान खानजादे की इंग्लिश आदत से गाल से होती निचले लब पर आकर ठहरी तो वो तेजी से उसके हिसार से निकलती अपने दिलकश सरापे को झपटकर दुपट्टे से ढांपती तेजी से टेबल की तरफ बढ़ी थी। खाना ठंडा हो चुका है, उसने मुंह बसोरा था। कोई बात नहीं, मैं आज ठंडा खाना भी खा लूंगा। प्यार से उसकी नाक दबाकर वो उसके लिए सोफे पर बैठ गया। फिर उन दोनों ने खुशगवार बातों के दौरान खाना खाया था। बस अब जल्दी से केक काटे वरना दूसरा दिन लग जाना है। 12 की तरफ बढ़ती सुई को देख वो तेजी से बोलती बच्चों की तरह उसकी जानिब छुरी बढ़ा गई तो वो जवाबन हंसकर केक पर छुरी छुरी चलाने लगा कि वो चीख पड़ी। पहले विश तो मांग ले। दोनों हाथ बाहर मिलाए पर इश्तियाक से वो बस उसे खुद से प्यार करने पर उकसाई जा रही थी। वो दिन बदन अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जा रहा था। फिर उसने सुंदर से कहने के मुताबिक विश मांगते कैंडल बुझाकर केक कट किया। केक का एक पीस निकालकर पहले उसने सुंदर को खिलाया, फिर बचा पीस अपने मुंह में रख लिया। टिश्यू से हाथ साफ करते उसने गले से टाई निकालकर सोफे पर रखी और कप लिंक्स हटाकर शर्ट की आस्तीनें फोल्ड करते वो पूरी तरह सुंदर की तरफ मुतवज्जे था, जो शायद उससे कुछ पूछना चाह रही थी। क्या पूछना है? उसने गोया उसकी मुश्किल आसान की थी। आपने क्या विश मांगी?
वो बेसाख्ता ही आगे को खिसक आई और उसके बाजू पर दोनों हाथ जमा लिए। विश तो मेरे ख्याल में बताते नहीं है ना? उसने मसनूई आंखें दिखाई दी। बीवी को बता सकते हैं। उसने नाक चढ़ाई तो वो हंसकर उसकी नाक दबा गया। उसके अंदर की ये खुद एतमादी रूहान खानजादा की ही मरहून मन्नत थी। मैंने दुआ की कि अल्लाह मुझे दो प्यारे प्यारे बेटे और दो प्यारी प्यारी बेटियां अता करे। बोलो आमीन। उसके नरम मोहब्बत से लबरेज लहजे पर वो झट से आमीन बोलती एकदम सटपटाई थी। मैं अब चलती हूँ, सुबह कॉलेज भी जाना है, मुझे सख्त नींद आ रही है। वो उजलत भरे अंदाज में बोलती वहां से जाने लगी कि मुकाबिल ने तेजी से उठकर उसका रास्ता रोका। मेरी बर्थडे का गिफ्ट कहाँ है? इस मरतबा उसका अंदाज कड़ा था। इतनी मेहनत से सब तैयार किया, केक ऑर्डर किया, खाना बनाया, आपके लिए तैयार हुई, यही तो बर्थडे गिफ्ट था। वो संजीदगी से एक एक चीज गिनवाने लगी तो उसने उसके दोनों शानों पर हाथ जमाए, उसे अपने नजदीक तर किया, उसकी बदामी आंखों में अपनी आंखें गाड़े गोया हुआ। जब बीवी इतना बंद संवरती है तो शौहर का काम होता है कि अपनी बीवी को सराहे। अब तुम इतनी सजी संवरी हो तो बदले में मुझे तुम्हारी तारीफ करनी है, और यकीन जानो मेरी तारीफ तुम्हें खुद पर नाज़ा कर देगी। हया से सुरख पड़ते गालों को नरमी से छूते उसने मुकाबिल को अपने वजूद का हिस्सा बनाया तो वो धड़कते दिल के साथ उसके हिसाब में गोया कैद हो चुकी थी। रोहान खानजादा की कुल कायनात हो तुम। जिंदगी में जब तुमसे नफरत की तो खुलकर की, और आज जब इस दिल में तुम बस तुम ही हो तो बाखुदा इस दिल में तुम्हारी मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। अपने अल्फाज से उसे मोहब्बत करते उसने सुंदुस के माथे को शिद्दत से चूमा तो वो आसूदगी से उसे गिर्द अपना हिसार बांध गई थी। सुंदुस का फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो चुका था, ऐसे में उसे खाने पीने तक का होश नहीं था, लेकिन हाजरा उसके सर पर सवार उसे कुछ न कुछ बनाकर खिलाती रहती थी। एक हफ्ते से रूहान भी घर पे मौजूद नहीं था। वो चंद जरूरी मीटिंग्स के सिलसिले में दुबई गया हुआ था, लेकिन वो रोज उससे वीडियो कॉल पर बात करता था। उसके बगैर इतने दिन दूर रहना आसान अमर नहीं था, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। अब तो उसका बिजनेस भी रन करने लगा था, कारोबारी दुनिया में उसका नाम पहचाने जाने लगा था। शहर आने के बाद से वो मुश्किल 2 मरतबा लाल हवेली गया था, वो भी बस अकेला, और ये उसकी अपनी मर्जी थी। वो फिलहाल उसे वहां नहीं ले जा सकता था। अम्मा जान बेशक सब सुंदुस को बुरा भला नहीं कहती थी, लेकिन उसकी अपनी माँ का दिल सुंदुस के लिए अब तक नरम नहीं हो पाया था। अब वो नहीं चाहता था कि सुंदुस अब कभी उसके घर वालों की वजह से हर्ट हो। वो आखिरी पेपर देकर जैसे ही कॉलेज के गेट से बाहर निकली, सामने खड़े रूहान खानजादा को एक शान से इस्तादा देख उसके लबों से खुशी के मारे चीख निकली। और फिर एक आलम ने देखा था कि वो दौड़ती हुई जाकर उससे लिपट गई थी। पूरे 10 दिन बाद लौटे हो तुम, सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तेज तेज सांसों के दरमियान वो अटक अटक कर बोल रही थी, जबकि रूहान खानजादा ने उसके वालियाना इस्तकबाल पर उसे गिर हिसार तंग करते उसका दुपट्टे से ढका सर चूमा था। तुम्हारे अमल से पता चल रहा है कि तुमने मुझे कितना मिस किया। वो शरारत भरी संजीदगी से गोया हुआ तो सुंदर से एकदम होश में आती, खौफ तो शर्मिंदगी के मारे सुरख पड़ती, अपना बैग कांधे पर दुरुस्त करने लगी। घर चलते हैं, बाकी का इस्तकबाल वहीं कर लेना। प्यार से उसका गाल छूते उसने झीपी झीपी से संदूस के लिए गाड़ी का फ्रंट डोर खोल दिया था। घर पहुंचकर वो जल्दी से चेंज करने चल दी, जबकि वो वहीं डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर उसका वेट करने लगा। हाजिरा अलबत्ता लंच मेज पर लगा रही थी। प्रिंटेड लॉन के सूट में उजले चेहरे के साथ वो 5 मिनट में ही लौट आई थी। रोहन ने उसकी प्लेट में पहले खाना निकाला, फिर अपनी प्लेट में। पेपर्स कैसे हुए? खाने के दौरान ही उसने बात शुरू की। पेपर्स तो बहुत अच्छे हुए हैं, मेरी तवक्का से भी ज्यादा। वो एकदम पुरजोश सी बता रही थी। तेज तेज हिलते लब बार बार उसकी तवज्जो भटका रहे थे। कभी वो चेहरे की आवारा लटको कान के पीछे करती तो कभी नाक चढ़ाती, तो कभी होंठ बनाती, गोया वो अपनी इन्हीं अदाओं से उसे घायल किए जा रही थी। वो पूरे 10 दिन की रुदात पटर पटर करती जबान के साथ बोलती जा रही थी, और वो हर शय से बेगाना बस उसे ही सुनने को जैसे बेकरार था। आपकी मीटिंग्स का क्या रहा? अच्छी थी? बातों का रुख बदल गया था। बिल्कुल तुम्हारा वाला मामला था, तवक्का से ज्यादा अच्छी रही। टिश्यू से मुंह साफ करते वो अपनी जगह से उठा और संदूस के सामने अपनी चौड़ी हथेली फैला दी। वो भी खाना खा चुकी थी जब भी अपना हाथ उसके हाथ में देती उठ खड़ी हुई। हम 2 घंटे बाद लाल हवेली के लिए निकल रहे हैं। रूम का डोर लॉक करते वो उसके करीब होते बेड पर ही बैठा था। मुझे भी चलना होगा। वो वहां जाने के ख्याल से कुछ घबराई सी थी। बिल्कुल, इस मर्तबा तुम भी मेरे साथ चलोगी। दरअसल अम्मा जान की तबीयत ठीक नहीं है, वो चाहती है कि मैं तुम्हें लेकर वहां पर आऊं। संजीदगी से कहते उसने सुंदर का हाथ थामकर लबों से छुआ तो वो सिमट सी गई। रूहान ने अपने कोट की जेब से एक केस निकालकर उसमें से निहायत खूबसूरत नाजुक सा ब्रेसलेट निकाला और उसके सिडोल कलाई का हिस्सा बना दिया। ये बहुत खूबसूरत है। छोटे छोटे लटकते हार्ट को छूते वो बच्चों की तरह खुश हुई थी, जबकि जवाबन वो मुस्कुराकर उसकी कलाई चूम गया। हम 2 घंटे बाद क्यों हवेली जाएंगे? अभी निकलते हैं, रास्ता काफी लंबा है। मुकाबले के तकाजों को समझते दिल की धड़कनें अतदाल से हटी तो उसने दामन बचाना चाहा। जालिम बीवी, ये 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। 10 दिन की दूरी ने इस दिल में तुम्हारी शिद्दतों को बढ़ा दिया है, सो मुझे तो मेरे 2 घंटे चाहिए ही चाहिए।
प्यार भरी आंखें दिखाते उसने जो ही उसके सर से दुपट्टे को सिरकाया, वो हया के मारे उससे लिपट गई। अब तो मुझे मुकम्मल इजाजत भी मिल गई है। वो मजीद शौक होता हंसकर उसके कंधे को चूम गया। तंग मत करें। नाजुक हाथ की मुट्ठी बनाकर उसने रूहान के कंधे पर मारी। चलो ठीक है, तंग नहीं करता, प्यार कर लेता हूँ। मदहोश कुन सरगोशी करते उसने अपने इस्तेहाक का दायरा बढ़ाया तो वो हया से गुलरंग होती गई थी। हवेली में रूहान का इस्तकबाल काफी पुरजोश अंदाज में किया गया था। सुंदर से अलबत्ता किसी ने खास कोई बात नहीं की थी, लेकिन किसी की नजरों में उसके लिए हकारत या नफरत भी नहीं थी। रूहान खानजादा ने उसे कबूल करके उसकी हैसियत बदल डाली थी। रूहान ने इस पूरे वक्त उसे अपने साथ साथ रखा। वो जानता था कि वो घबराई हुई है, वो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन बस उसके कहने पर चली आई थी। जबकि सुंदर के चेहरे के हसीन रंग देख अम्मा जान का बस नहीं चल रहा था कि वो उसके सारे रंग उसके चेहरे से नोच लें। सुंदर उसके लिए क्या थी, आज लाल हवेली वाले जान चुके थे। वो जिस तरह उसे अपने साथ रखे हुए था और जिस तरह खाने के वक्त अपनी प्लेट से पहले वो उसकी प्लेट में कुछ न कुछ डाल रहा था, सबको उसकी मोहब्बत साफ नजर आ रही थी। तुम अपने बेटे को खुश देखकर खुश नहीं हो? अपने बेड पर बैठे रूहान के बाबा ने हाथ में पकड़ी किताब एक तरफ रखी थी। वो अपनी बीवी का गुमसुम अंदाज नोट कर रहे थे। कौन माँ अपनी बेटी की खुशी में खुश नहीं होगी? मैं खुश हूँ, लेकिन वो मुद्दम सा बोलती खामोश हुई थी। पुरानी सब बातों को भूल जाओ। वो बच्ची हमारे बेटे की कातिल नहीं है, वो बस एक हादसा था। उसका इतना ही वक्त लिखा था दुनिया में, वरना क्या बस मामूली सी चोट पर यूं हमें छोड़कर जा सकता था? बस करो, सब भूलकर आगे बढ़ जाओ। जिंदगी मुख्तसर बची है, अपने बच्चों की खुशी में खुश रहकर गुजार लें तो अच्छा है। अपनी बीवी को प्यार से समझाते हुए उनके बहते आंसू साफ अपने पोरों से साफ करने लगे, तो अब चौदह से सांस खारिज करती उसके शाने पर सर रख गई थी। थकन होने के सबब रात वो लोग जल्दी सो गए थे। सुबह हस्बी आदत वो नमाज के लिए उठी तो उसने रूहान को भी उठा दिया। नमाज पढ़कर उन दोनों ने कुछ देर हवेली के बड़े से लॉन में वॉक की थी। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले वो एक दूसरे के एहसास को महसूस कर रहे थे, जब सुंदस ने अपनी खामोशी तोड़ी। मैं तुम्हारी मशहूर हूँ रूहान, एक तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई है। वो उसे कंधे पर सर टिकाए नमजदा लहजे में बोली, तो रूहान ठहर कर उसके रूबरू होता उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर गया। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाना मेरा फर्ज है, शुक्रिया मत कहो। उसकी नम आंखों को बारी बारी चूमते हुए उसने सुंदूस को अपने सीने से लगाया था, जबकि अपने कमरे की खिड़की से ये मंजर देखती अम्मा जान किसी नागन की तरह बल खा गई थी। नाश्ते के बाद रोहान तो अपने बाबा के साथ बागात की संत निकल गया था और घर के दीगर मर्द हजरात भी अपने कामों पर निकल चुके थे। ऐसे में बस घर की खवातीन ही हवेली में मौजूद थी। सुंदर अलबत्ता कमरे में ही थी, उसकी तबीयत कुछ सुस्ती हो रही थी। उसने इंटरकॉम के जरिए मुलाजमा को जूस लाने को कहा था। अम्मा जान, आपने अपनी दवाई खा ली थी ना? रोहान की माँ जी उनके करीब बैठकर उनकी दवाएं चेक करती गोया हुई। दवा खा ली है मैंने, और अब तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी मेरी, जब वो मनहूस मार हमारी जिंदगी से निकल जाएगी। उनके लहजे में गोया जहर भरा था। अम्मा जान, कैसी बातें करती हैं? बस आप भूल कर आगे बढ़ जाएं। मेरा बेटा सुंदुस के साथ खुश है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब भी उसकी खुशी में खुश हो जाएं। वो रसान से उन्हें समझा रही थी, जो शायद कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। खुश तो आज मैं बहुत हूँ, वो कांटा जो मेरी जिंदगी से निकल गया। उनके पुरस्रार से अंदाज पर कमरे के चौखट पर मौजूद रूहान खान ज्यादा चौंक उठा था। अम्मा जी की तबीयत की वजह से वो जल्दी वापस आ गया था। वैसे भी आज शाम उन्हें वापस लौट जाना था, इसलिए वो ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारना चाह रहा था। लेकिन उनके मुंह से सुंदुस की नफरत की कहानी सुनते हुए उसका दिल दुख से भर गया। अम्मा जान, कुछ गलत तो नहीं कर दिया आपने सुंदुस के साथ? वो पल में परेशानी से गोया हुई। गलत को सही किया है मैंने। मुलाजमा जो कुछ देर पहले उसे जूस देने गई थी, मैंने उसमें जहर मिलवा दिया था। अब तक तो उससे हम सबकी जान भी छूट चुकी होगी। वो खुशी में बोल रही थी कि वो गुस्से से पागल होता उनके कमरे में दाखिल हुआ था। अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो याद रखिएगा, मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा। सर्द बर्फीले लहजे की ठंडक को उनकी हड्डियों में उतारता वहशा जदा सा होकर पलटकर जो दौड़ा, तो माँ जी भी पीछे ही भागी थी। उसने एक झटके से दरवाजा खोला तो संदूस को सर पकड़े बेड पर बैठे देखा। उसकी दूसरी नजर खाली जूस के गिलास पर पड़ी तो वो तवारा मर्द बुरी तरह से लड़खड़ा गया। सुंदस, सरसराते हुए ये नाम उसके लबों से अदा हुआ था। आप आ गए रोहान, मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। वह जैसे ही उठकर खड़ी हुई उसे फिर से बड़े जोर के चक्कर आए थे। इससे पहले कि वह जमीन बोस होती, रोहान ने लपक कर उसके बेहोश वजूद को अपनी बाहों में समेटा और तेजी से उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकला था। पीछे उसकी माँ जी ने रोते हुए अपने शौहर को कॉल मिला दी थी। अंदर इमरजेंसी रूम में सुंदुस मौजूद थी तो बाहर वो उसके लिए पागल हो जा रहा था, जब डॉक्टर रूम का दरवाजा धकेल कर बाहर निकली थी। अरे खान साहब, परेशान क्यों होते हैं? आपके लिए तो खुशी की खबर है। बड़ी उम्र के डॉक्टर का अंदाज छेड़ लिया हुआ था, जबकि वो नासमझी के आलम में उन्हें देखने लगा। आपकी बीवी जहर की वजह से नहीं, बस कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी। उनका बीपी लो हो गया था। इस कंडीशन में वैसे चक्कर आना, उल्टी होना आम बात है। आप पहली मर्तबा बाप बन रहे हैं तो आप भी ये बातें सीख और समझ जाएंगे। मुबारक हो खान साहब, आप बाबा बनने वाले हैं। अपने कहकर वो जा चुकी थी, जबकि वो इंग्लिश में बदंदाज सा रह गया था। अरे मेरे बेटे, मुबारक हो।
माँ जी जब भी उसके बाबा के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी, इस खबर को सुनते रोती हुई अपने बेटे के सीने से लग गई। मुबारक हो मेरे शेर। उसके बाबा ने भी उसका कंधा पुरजोर अंदाज में थपथपाया था। इस खुशी को आपकी माँ ने बर्बाद करना चाहा था बाबा। वो एकदम से तल्ख हुआ था। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो शर्मिंदगी से गोया हुए तो वो गुस्से में सर झटक गया। आज के बाद लाल हवेली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आप लोग मेरे माँ बाप हैं, मेरे साथ मेरे घर चल कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं मरते दम तक वहां कदम नहीं रखने वाला। उसके कतई लहजे पर उन दोनों ने उसकी बात की तायीद की थी। वो तो शुक्र हो कि मुलाजमा ने अम्मा जी के कहने पर वो जहर जूस में नहीं डाला था, क्योंकि वह मुलाजमा हाजरा की बहन थी। सुंदस के साथ इस हवेली में बहुत कुछ गलत हुआ है, यहाँ तक कि आपके भतीजों तक ने उसे हरास किया है। हाजिर से मैंने एक एक बात पूछी है। वो तो मेरा जर्फ था कि मैंने सबको जाने दिया, क्योंकि उनकी जरूरत मेरी वजह से बढ़ी थी। मैं अपनी बीवी का गुनहगार था, इसलिए मैं उसे यहाँ से दूर ले गया था। वो गमो गुस्से की कैफियत में बोल रहा था, जबकि उसके माँ बाप मजीद शर्मिंदा हो जा रहे थे। मैं अपने बेटे के साथ अब शहर वाले घर में रहूंगी। बहू दूसरे जी से है, उसे इस वक्त मेरी जरूरत है। वो अपने शौहर से अपनी अंदाज में बोल रही थी, जबकि वो सुंदर से मिलने के लिए अंदर के जाने पड़ गया। वो बेड पर लेटी हुई थी, उसे ड्रिप चढ़ रही थी। रोहान को देख वो शर्मीला सा मुस्कुराई। जब वो उसके करीब होता दीवानगी के आलम में उसे छूते बेकरार हुआ। तो मेरे जीने की वजह हो, तो मैं यूं बेजान देख मेरी जान निकल गई थी, मैं मरने वाला हो गया था। उसके करीब दराज होते वो अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाकर भारी लबो लहजे में बमुश्किल ही बोल पाया था। सुंदर ने महसूस किया कि वो रो रहा है। मेरे बेबी के बाबा इस तरह करेंगे तो वो सोचेगा कि उसके बाबा कमजोर हैं। अपना हाथ नरमी से उसके बालों में फेरते वो प्यार भरे लहजे में बोलती, सर को हल्का सा झुकाकर उसकी कनपटी को चूम गई। तो वो खुद पर जब्त करता सीधा हुआ। इधर आए जरा। उसने रोब से उसे अपने करीब बुलाया तो अपना चेहरा मजीद उसके करीब ले आया। तो उसने बारी बारी उसकी सुर्ख आंखों को चूमा था। इस लम्स की तासुर ने रूहान खानजादे के दिल जलन गोया जाती हुई महसूस हुई थी। इस खुशी के मौके पर भला कोई यूं भी करता है। वो अब नाराज हो रही थी, जबकि वो हंसकर उसके चेहरे को शिद्दत से छूने लगा। हम अंदर आ सकते हैं? दरवाजा नॉक करके उसके बाबा ने शोक अंदाज में अंदर आने की इजाजत चाही थी, जबकि वो बालों में हाथ फेरते सीधा हुआ। जबकि सुंदर चेहरे पर बिखरे हया के रंग छुपा नहीं पा रही थी। बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची, हमें इतनी जल्दी इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हो तुम। माँ जी प्यार से उसके माथे को चूमती उसे खुशगवार हैरानगी में मुब्तला कर गई। उसने बेसाख्ता ही रूहान की जानिब देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था। उसके बाबा ने भी उसके सर पर दस्ते शफकत रखा तो वो आसूदगी से आंखें मूंद गई थी। वक्त लगा, लेकिन इस मसीहा ने उसके सारे जख्म भर दिए थे। कुछ सालों बाद कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, बिल्कुल वैसे ही हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ हो सकता है। बाबा मामा कब आएंगी? ये रूहान का बेटा था, जिसने कोई 20वीं मरतबा यही सवाल दोहराया था। बेटा जहाज लैंड कर गया है, बस वो बाहर आती ही होंगे। जवाब उसके दादा की जानिब से आया था। वो देखो मामा आ गई। दादी की उंगली पकड़े रूहान की बेटी एकदम से चहकी तो सभी की नजर उस जाने उड़ गई, जहां वो गिरीश नवार कमीज में मलबूस खुद पर शॉल लिए और वकार अंदाज में चलती हुई हंसती हुई ट्रॉली घसीटती उनकी जानिब आ रही थी। रोहन अपने दिल के सुकून को देख तेजी से आगे बढ़ा तो वो ट्रॉली छोड़कर भागते उसके करीब होती बेसाख्ता ही उससे लिपट गई थी। मैंने आपको और बच्चों को बहुत मिस किया। उसके सीने पर पुरसुकून अंदाज में सर रखे गोया वह हर शय से गाफिल हुई, जबकि मुकाबिल ने हंसकर मोहब्बत से उसका सर चूमा था। मेरे बच्चों से भी मिल लो, वरना वो फिर नाराजगी जताएंगे कि मामा बाबा से ज्यादा प्यार करती हैं। वो शरीर से सरगोशी करता उसे गोया होश दिला गया, तो वो खज्जल सी उससे दूर होती तेजी से अपने सास ससुर की तरफ बढ़ी थी। उनको सलाम करते हुए अब घुटनों के बल बैठी अपने दोनों बच्चों को चटाचट प्यार दे रही थी, जो उससे खफगी का इजहार कर रहे थे। जबकि रूहान खान ज्यादा मुस्कुराते हुए सारे जहां का प्यार आंखों में लिए अपनी हयात को देखे जा रहा था।